नमस्कार, विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक व्यास। आज के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं उस मुलाकात का अंश जिसमें नेसा में कार्यरत भारतीय मूल के एक युवा विष्णु श्रीधर आपको बताएंगे लीड सिस्टम इंजीनियर के रूप में क्या रही उनकी भूमिका मार्स रोवर 2020 में। आपकी मुलाकात करवाएंगे न्यूयॉर्क में भारत के इंडियन कॉन्सल जनरल रणधीर जायसवाल जी से, जो बता रहे हैं क्या है विशेषता फार्मर्स रिफॉर्म बिल की। और इसके अलावा एक विशेष प्रस्तुति आधारित महिलाओं के कवि सम्मेलन पर जिसका आयोजन किया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स की तरफ से, संचालन किया सुषमा मल्होत्रा ने। ये सब प्रतीक्षा करेगा आपकी इस छोटे से ब्रेक के बाद। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में फिर एक बार आपका स्वागत है और आपको लिए चलते हैं एक ऐसे युवा से जिसने बड़े बड़े सपने देखे। उम्र छोटी थी पर जाना चाहते थे वो अंतरिक्ष की तरफ। अंतरिक्ष से संबंधित ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते वो आखिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेसा तक जा पहुंचे और हाल ही में समाचारों की सुर्खियां बने लीड सिस्टम इंजीनियर नेसा के विष्णु श्रीधर। 27 बरस के इस युवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मार्स रोवर 2020 परसीवरेंस में सुपर कैम के इंजीनियर के रूप में। क्या कुछ बताया विष्णु श्रीधर ने, उसका कुछ अंश प्रस्तुत है आज के विजन ऑफ एशिया में। So the Mars 2020 mission, or Perseverance, really kickstarted about 6-7 years ago. So that's when the scientists around the country and around the world came up with the proposal saying that these are the instrument suites we have, and we want to send it to Mars, to a particular landing site, so that we can answer some of the fundamental questions like, was there ever life on Mars? Can we find any biosignatures? So after that was initially approved by NASA, JPL started building the rover and the instruments and collaborating with our international partners in France, Norway, Spain, and etc. And my job really started about 3-ish years ago when SuperCam really started going into the design and manufacturing phase. So I was at JPL in charge of integrating the SuperCam into the Perseverance rover and making sure that all the testing in terms of thermal, all the electronics and flight software behaviors work as expected. So over the past years, I've been taking SuperCam from integration, testing phase, putting it in a thermal chamber, making sure everything works nominally, and the launch that we had last year from Florida. And after the launch, SuperCam and Perseverance is on its journey to Mars, and we need to do a series of testing and things like that. So I was involved in that. And of course, now it landed safely last week. The Mars 2020 rover will initiate a long sought after mission of returning Martian rocks and soil to the Earth for further study. The Mars sample return mission is a high priority not only for the scientific knowledge it will provide, but also the opportunity it presents to tackle a difficult technological challenge. Remember, Mars 2020 is going to have the first Mars helicopter. The Mars sample return will include the first ever rocket launched from another planet.
there are more testing and things to come before we really start the science operations. So your smile tells me a lot about how this made you feel. And walking with you to understand a little bit more, when you say super cam, of course, it has some additional capabilities of not just taking pictures, and there is much more. So, tell me why it is called super cam, and what is it that it can do? Yeah, SuperCam is basically a really complex and powerful suite of instruments where it uses lasers to detect the elemental composition and mineralogy of a target. And it can do that from a distance. That's why it's called a remote science instrument. So the rover can look at a target anywhere from 2 meters distant to up to 7 meters, and it can fire lasers on that rock. And then the light coming out of that is read by the spectrometers of SuperCam, which can use scientists and engineers to determine what the rock composition is made out of. And we also have other things in SuperCam, like a color microscopic camera. We have a microphone, so we can hear how Martian environment sounds, but also the laser pits that we can hear, where we can interpolate what that means. And it has like infrared spectrometer and things like that that really is used to study rocks and soil on Mars. फार्मर्स रिफॉर्म बिल के मूल में जहां भावना भारत सरकार की ये रही है कि किसानों के और बिचौलियों के बीच के संबंध को इस तरह से पुनर्व्यवस्थित किया जाए कि किसान अपनी मेहनत का लाभ स्वयं ले सकें और बिचौलियों को न देना पड़े। भारत सरकार ने एमएसपी बनाए रखने की बात को बार बार दोहराया, पर किसी स्तर पर संप्रेषण में, किसी स्तर पर आपसी समझ में कमी रहने के कारण किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता रहा है। इस बारे में और स्पष्टीकरण देने की दिशा में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संबोधित करते हुए इंडियन कौंसल जनरल रणधीर जायसवाल जी ने जो बातें बताई, उनके कुछ अंश को आप तक पहुंचा रहे हैं। Without undertaking significant reforms and change some of the old policies, old laws which were framed when India was deficient in food. Today, India is surplus in food. And therefore, it is important that we remove the bottlenecks that are there in trading of farm produce, bottlenecks which make the Indian trading regime for agricultural produce fragmented. And for that reason, it is important that there is a need for diversification. Use the same land resources for growing high value crops, for doing other things where returns are higher, so on and so forth. On 26 January, while these protesters are sitting there and the protest is largely peaceful, on 26 January, all of you know what happened in Red Fort. People took law in their own hands, and obviously when you do that, law must take its own course. Another thing very troubling is that people who condemned the actions here on 6th of January in Washington, same people are condoning the action of 26 January in Delhi. So I think this is broadly, these are the issues that come to our mind. I have a comment. Number one, I think nowhere in the press releases or information released by the government have they categorically stated that an input has been taken from the representative farmers, whether they are just contract farmers receiving subsidy from the government to improve their agricultural conditions, or the owner, operator, and worker themselves, if they're doing everything together, they're owners, operators, as well as getting the subsidy, that their input has been received. I think there is a dichotomy or a disconnect between what we are seeing on the media versus what the Consul General has clearly said, and we believe you 100%. I think it is important to clear that misunderstanding and document and publicize if a survey has been taken. And if a survey has not been taken, a representative sample, and I'm not sure how you would pick that sample. I think that the validity of that sample has to be
honest and representative of the population that is going to be affected the most. As you pointed out, 65% of the farmers are 65% of the occupation in India is farming. So it is hugely important to India. And if there is actually a surplus, and the government, this is the second point I'm making, is saying the MSP will remain the same, then what you're telling the farmers to do is to work twice as hard and give twice the product for the same price, which is not reasonable. Right? I'm very heartened to hear that Gujarat's Amul model and Sudha's model from Bihar is going to be implemented, and they're taking it. And I think highlighting those things and publicizing it in media is going to create a better image. A lot of people in the community in United States at least asked us about this question. We were totally clueless. So thank you so much for sharing this. If the farmer are independent, okay, and they are doing of their own decision making and they are working for an open market system, everything grows. It is a completely unfortunate that the people who is having no agenda has made a protest and not understanding really into the aim of last 50, 60 years, what the country was suffering. And this is the first time was done, which is why not one country, one market? And so this has given an opportunity for first time to the farmer to go anywhere, everywhere, and somewhere where you make more money, where you make more, value to your product. So this is the first time was done by the government of India, and kudos to the Prime Minister, Mr. Modi, who has taken this initiative. And I think this is a negative media which has a concurrent with a divisive force in the country, which is not understanding, and they are not well grounded. So they are somewhere in the air and doing misinformation, and that confusion has to go away. And whatever is done, and I think there is nobody as the protest today in Sindhu border and the Ghazipur border and any border. End of the day, farming is an entrepreneurship. Farming is a business. Farming is not a politics. And I think every one farm across India from north to south, east to west is all united for one thing, that we have to make money, we have to grow together and make a country stronger, because 50% of the economy lies in India is through the farm sector. So why to let this farm sector to be in the backyard? Let's move ahead in the future so that every one farm will be acting as a business sector. And I'm very thankful to the entire parliament to support this kind of thing. आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे ITV गोल्ड पर आपकी सेवा में विजन ऑफ एशिया प्रस्तुत करने के साथ साथ हम हर सप्ताह एक विशेष अंक विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ द कम्युनिटी का आपके लिए लेकर आते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हुए निवेदन है बने रहें हमारे साथ। जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में अब आप तक पहुंचा रहे हैं अंश एक ऐसे कवि सम्मेलन का जो अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन था, वर्चुअली आयोजित किया गया नारी शक्ति के समर्पण के साथ, और इसका आयोजन किया एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स ने। इसका संचालन किया सुषमा मल्होत्रा और सरिता मेहता ने। इसमें भाग लेने वाली कवित्रियां न केवल अमेरिका के अलग अलग शहरों से संबंधित थीं, बल्कि भारत से भी कुछ कवियत्रियां, कुछ वरिष्ठ कवियत्रियां मुंबई से भी जुड़ी, आगरा से भी जुड़ी। और इस आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद देने के साथ साथ चलते हैं आनंद लेने उन पंक्तियों का जिनमें गहराई भी है, संवेदना भी है, सोच भी है और कहीं ना कहीं एक कसक भी है, जिसके साथ महिलाओं के सपना देखने और पूरा होने के बीच की दूरी कहीं ना कहीं झांकती है। प्रस्तुत है झलकियां इस कवि सम्मेलन की जो समर्पित था नारी शक्ति को। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एजुकेटर्स न्यूयॉर्क
द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला कवि सम्मेलन नारी शक्ति में आप सबका स्वागत है। साल में हम एक एनुअल प्रोग्राम हर बार करते हैं इस एसोसिएशन के लिए। आज का जो प्रोग्राम है वो आप सभी एंजॉय करना। इन शॉर्ट आई कैन से सशक्तिकरण मीन्स नारी का, महिला का पावर में होना। जब नारी पावर में होगी तभी सब कुछ संभव है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं सुमित्रा नंदन पंत की 4 पंक्तियों से सुंदरता का आलोक प्रस्तुत करती हूँ। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरा स्वर होगा जग का स्वर। मेरे विचार जग के विचार, मेरे मानस का स्वर्ग लोक। मेरे मानस का स्वर्ग लोक उतरेगा भू पर नई बार, उतरेगा भू पर नई बार। माँ वाणी की वंदना से प्रारंभ करती हूँ। माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन। माँ तेरी जो कृपा हुई तो सफल हुआ यह जीवन। तेरे ही चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन। तेरे ही चरणों में अर्पित है मेरा तन मन धन। पापा जब बहन से पूछे पिंकी का फोन आया, तब उस संध्या की गहरी लालिमा में मैं जगमगाता उजास हूँ। जब कहें जीवन साथी, जो है खालिस गोरा अमरीकी यहाँ अमेरिका में, जब कहें जीवन साथी आलू का पराठा विथ लॉट्स ऑफ प्याज एंड ग्रीन चिलीज, तो मैं अमेरिका में हिंदुस्तान का आभास हूँ। कहीं थकी रात की नींद हूँ, कहीं नजरों की प्यास हूँ, कहीं गंभीर मनन की मूरत, कभी हास परिहास हूँ। कई अपनों का मान हूँ, कुछ औरों का सम्मान हूँ, पर इन सब से ऊपर मैं अपना दृढ़ आत्मविश्वास हूँ। प्रेम का संदेश देती, प्रेम लेना नहीं देना है, वो भी यही कहती हैं। प्रेम का संदेश देती है, प्रेम लेना नहीं देना है। प्रेम से कुछ भी देकर देखो, खुशी ही पाओगे। खुशी के साथ तू भी प्रेममय हो जाएगा। कान्हा, ये बावरा मन तुम्हें पुकारता है, कहाँ हो तुम? तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देना चाहती हूँ मैं। कागज की कश्ती लेकर तुम तक पहुंचना चाहती हूँ मैं। कान्हा, एक अजीब सी कश्मकश है मेरे मन में, एक अजीब सी कश्मकश है मेरे मन में। जब भी तुम्हारे ख्यालों के पलकों में डूबकर अंतर्मन से तुम्हारे बांसुरों की धुन में तन मन सब भूल कर तुम्हें याद करता है मन। कान्हा, कहाँ हो तुम? कि वो रोता है तो रोती हूँ, वो हंसता है तो हंसती हूँ। वो रोता है तो रोती हूँ, वो हंसता है तो हंसती हूँ। दुआओं में उसकी खुशी, यही दुआ मैं करती हूँ। उसको बख्शे हर खुशी मेरे मौला मस्त कलंदर। मेरी रूह में उतर गया उसके इश्क का समंदर। मेरी रूह में उतर गया उसके इश्क का समंदर। सुनो सुनो, मिलना मुश्किल है हमारा। सुनो, मिलना मुश्किल है हमारा, क्योंकि मेरी गली मंदिर तक जाती है और तुम्हारी मस्जिद तक। क्योंकि मेरी गली मंदिर तक जाती है और तुम्हारी मस्जिद तक। हम इन दोनों गलियों का एक हो जाना कहाँ मुमकिन है। इस बसंती रंग से तुम्हारी मांग सजा तो दूं, इस बसंती रंग से तुम्हारी मांग सजा तो दूं, पर क्या उफनती नदी में हम खे पाएंगे अपनी नैया? क्या हमारे मोहल्ले गले मिल सकेंगे? सावनी बहार को प्रीत की फुहार को बूंद बूंद पी लिया।
सावनी बहार को प्रीत की फुहार को बूंद बूंद पी लिया, फिर जी भर जी लिया, फिर जी भर जी लिया। यूं तो रहते हैं वो खामोश झुकी नजरों से, अदाए शौक का अंदाज कातिलाना है, अदाए शौक का अंदाज कातिलाना है, उनकी आँखों में छलकता हुआ पैमाना है। एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा, एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा, जो था पुरातन उसे अनुशंसित कर रहा। एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा, जो था पुरातन उसे अनुशंसित कर रहा। त्यागना होगा जो पश्चिम से मिला, त्यागना होगा जो पश्चिम से मिला, फिर बने सनातन अभिमंत्रित कर रहा, फिर बने सनातन अभिमंत्रित कर रहा। एक कालखंड हमें अनुशिक्षित कर रहा। सांझ सवेरे रहे पकाऊ, सांझ सवेरे रहे पकाऊ, उब रहे दोपहरिया, साफ सफाई चौक रसोई रोज वही दिनचर्या। सांझ सवेरे रहे पकाऊ, उब रहे दोपहरिया, साफ सफाई चौक रसोई रोज वही दिनचर्या। वो ओस नहीं मेरे आंसू हैं, फूलों में श्रेष्ठ मैं गुलाब रो रहा हूं। ओह, नन्हा फूल असमंजस से भर उठा और बोला, अवसाद तो हम जैसों के लिए बना है, जो कभी किसी की नजरों में नहीं आते, जिनका जीवन कभी प्रशंसा नहीं पाता, कोई माली हमें नहीं सहेजता। गुलाब ने कहा, यही तो मेरे अवसाद का कारण है। मैं इतना रूपवान हूं, इसीलिए मैं कभी जी ही नहीं पाता। मैं इतना रूपवान हूं, इसीलिए मैं कभी जी ही नहीं पाता। जितनी बार मैं जन्म लेता हूं, उतनी बार समय से पहले तोड़ लिया जाता है। मैं खुद में पूरी जननी हूं, जननी हूं जीवन भी मैं, जननी हूं जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूं व साकार भी हूं मैं, सशक्त हूं व साकार भी हूं मैं, नारी हूं कमजोर नहीं। क्या कविता का मौसम होता है? क्या कविता का कोई मौसम होता है जो सभी कविता करते हैं? घनी अंधेरी रातों में, घनी अंधेरी रातों में जब जुगनू सा कोई ख्वाब नया, कोई आस नहीं जगा जाता है, कोई आस नहीं जगा जाता है, कविता का मौसम होता है। सुरभित सुमन, सुरभित सुमन कुसुम मंजरी, पुष्प अब हर ओर दिखें। सुरभित सुमन कुसुम मंजरी, पुष्प अब हर ओर दिखें। कुसुमाकर सबको है भाई, सारी बगिया निर्मल रोशन हो नहाई, सारी बगिया निर्मल रोशन हो नहाई। मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी हे भगवान, मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, हे स्वर में माधुर्य नहीं है, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं है। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप लाभ ले सकते हैं हमारे कार्यक्रमों का बनकर फ्रेंड हमारे फेसबुक पेज पर। ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें और लिखते रहें अपने प्रतिक्रियाओं और इवेंट्स के संबंध में हमारे पते events@itvgold.com पर। फिर एक बार सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।